So now we come to another passage-based question of PMISC based on the transformer. So read the passage first. You must have seen कि passage से related question नहीं होते, passage से हमें बहुत कम information मिलती है, but at least we get the context कि हम सब किस context में पूछेगा question. So transformer is based upon the principle of mutual induction. It consists of the two coils, primary coil and secondary coil, insulated from each other, mounted on the soft iron core. Often the primary coil is input coil and secondary coil is the output coil. These soft iron cores are laminated to minimize the eddy current loss. Fine. So this is what is given to us in the passage. So now he says, first question, what is not possible in a transformer? Eddy current, direct current, alternating current, induced current. What is not possible in the transformer? Eddy current, direct current, induced current and alternating current. I think this is a very easy question. Direct current is not possible. Very good. DC. देखिए बच्चे, ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास एडी करंट्स होते हैं, एडी करंट लॉसेस भी होते हैं. एडी करंट क्यों होते हैं? बिकॉज वी हैव टू कॉइल्स, वन इज अ प्राइमरी कॉइल, वन इज अ सेकेंडरी कॉइल. ट्रांसफॉर्मर को अगर आप इमेजिन करेंगे तो यू कैन रिकॉल दैट हमारे इसमें दो कॉइल्स थी. वन वाज नोन एज द प्राइमरी कॉइल एंड अदर वाज नोन एज द सेकेंडरी कॉइल. फाइन. देन आफ्टर दिस they are wound on a soft iron core. So we have a core. अगर iron core है तो continuously magnetize ही magnetize होगा. Then आपके पास eddy currents, अगर iron है तो eddy currents will also be produced in them. तो eddy current होंगे से. ट्रांसफॉर्मर का रोल ही हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट में आता है, डीसी में कोई रोल ही नहीं है, इसलिए डायरेक्ट करंट हैज नथिंग टू डू विद द ट्रांसफॉर्मर. इंड्यूस्ड करंट तो होते ही हैं प्राइमरी की वजह से, सेकेंडरी में करंट इंड्यूस होता है. दैट इज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डायरेक्ट करंट. नाउ सेकंड थिंग, which second question, which quantities do not change during the transformer operation? Second question में A part says which quantities do not change in the transformer operation. The choices given are, the first choice is power, the second choice is frequency, third is voltage, and fourth is both A and B. Both A and B. Which quantities do not change during the transformer operation? Any clue? Power, frequency, voltage और both power and frequency. जल्दी बताइए बच्चे. Power and frequency. हाँ जी बोलिए आर्यन. Frequency will not change. What about power? What about power? बच्चे हमने आइडियल ट्रांसफॉर्मर जब किया था तब मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन ही यही बताई थी. A transformer is a device which converts low voltage at high current to high voltage at low current. Low voltage at high current to high voltage at low current का मीनिंग ही यही था कि primary power and secondary power remains the same. So input power is equal to output power. But of course this is only in case of the ideal transformer. जब हमें यहाँ पर इसने कुछ practical word नहीं दिया तो we are going to consider theoretically only which is the ideal transformer. In the last class अपने क्वेश्चन किया था जिसमें उसने मेंशन किया था practical transformer. तो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में तो लॉसेस होते हैं बेटा, तो फ्लक्स लीकेज भी होती है, पावर भी लॉस होती है.
But ideal transformer में until unless specified we are going to consider the transformer to be ideal transformer. Theoretically जो हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हैं उस केस में इनपुट पावर और आउटपुट पावर सेम होती है. प्रैक्टिकली मैंने आपको ये भी बताया था कि वोल्टेज जो इंक्रीज होती है वो एट द कॉस्ट ऑफ करंट होती है. It converts low voltage at high currents to high voltage at low current. Product remains the same. So power also remains the same and frequency also remains the same. So it means both A and B is the answer. Frequency of AC depends on its production. जब आपकी कॉइल रोटेट होती है तब आप AC जनरेटर में जब हम पढ़ते हैं तो जनरेटर में हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पढ़ा था. So omega will also not change while voltage will change definitely. Fine. Third question says a transformer has 150 turns in its primary and 1000 in the secondary. Fine. If the primary is connected to 440 volt DC supply, what will be the induced voltage in the secondary side? Read the question carefully. A transformer has 150 turns in its primary. We have been given NP 1000 in secondary. If the primary is connected to 440 volt DC supply, what will be the induced voltage in the secondary side? कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में. The answer should be 0, which is option D. First option उसने दिया है 10 volt. Second option उसने दिया है 3 volt. Fourth option he has given 5 volt and last option he has given 0. But बच्चे DC supply, when the DC word comes in the transformer, it is not going to work. The basic principle on which the transformer is based is a mutual induction, and mutual induction is a property due to which a coil opposes any change in the neighboring coil by inducing an EMF in itself. इसमें EMF इंड्यूस सेकेंडरी में आपको आउटपुट मिलती ही इसलिए है क्योंकि प्राइमरी में जो आपने AC अप्लाई किया वो चेंजिंग है, वो AC है, वो ऑल्टरनेटिंग है. अगर आप यहाँ DC दे दोगे इस कॉइल के साथ में करंट ही चेंज नहीं होगा, फील्ड ही चेंज नहीं होगा, फ्लक्स ही चेंज नहीं होगी, तो इसमें EMF इंड्यूस ही नहीं होगा, इसमें नहीं होगा तो इसमें भी नहीं होगा, बिकॉज सेकेंडरी इज इन द फील्ड ऑफ प्राइमरी ओनली. फाइन. सो नाउ फोर्थ क्वेश्चन. The ratio of the secondary to primary turns in an ideal transformer is 4:5. So इसका option last वाले का 0 था. He says the ratio of secondary to primary turns, जिसको हम transformation ratio बोलते हैं, NS/NP, is known as transformation ratio, which is the ratio of the number of turns in the secondary to the number of turns in the primary. Transformer की working है ही इसी बात पे based कि हमारे पास कहाँ पे number of turns ज्यादा है. अगर आपको आउटपुट ज्यादा चाहिए तो आप सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न ज्यादा करेंगे, आपको इनपुट ज्यादा चाहिए तो आप प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न ज्यादा करेंगे. मींस अगर आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो आपको आउटपुट ज्यादा चाहिए तो आपका NS शुड बी ग्रेटर देन NP. और अगर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, आपको प्रैक्टिकली स्पीकिंग आउटपुट में वोल्टेज कम करनी है तो आपकी नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी की कम होंगी और प्राइमरी की ज्यादा होंगी. So he says the ratio of secondary to primary turns in an ideal transformer is 4:5. If power input is P, then the ratio of the power output to the power input will be what? हालांकि मैंने ये क्वेश्चन 2 लाइन पढ़ते हुए फॉर्मूले लिख दिए, बट इस क्वेश्चन में एक्चुअली में इन फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव टू रीड the ratio of secondary to primary turns is ideal transformer में the ratio of NS is to NP हमें दे रखी है 4/5 in the ideal transformer. मैंने इससे पिछले पार्ट में ही आपको बता दिया था कि ideal transformer का मतलब ना तो पावर चेंज होगी और ना ही फ्रीक्वेंसी चेंज होगी. तो जब ये ideal transformer है तो कोई लॉसेस है ही नहीं. And then he says if power input is P, then the ratio of power output to the power input. तो बच्चे पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज गोइंग टू बी 1, क्योंकि कोई लॉस है ही नहीं. सबसे पहली चीज ही मैंने आपको ये बता दी थी कि आउटपुट पावर और इनपुट पावर सेम है इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर. ये रेशियो
रेशो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि सेकेंडरी में नंबर NS/NP जो है वो आपको दे रखे 4:5, तो प्रैक्टिकली एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, इसमें सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम है और प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। NS कम है और NP ज्यादा है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी वोल्टेज और करंट की कन्वर्जन रेट क्या है, कि वोल्टेज अगर इनपुट वोल्टेज 200 है तो आउटपुट क्या होगी, आउटपुट इतनी है तो इनपुट क्या होगी। दैट वी कैन नो फ्रॉम NS/NP। इनपुट और आउटपुट पावर की रेशो आइडियल ट्रांसफार्मर में 1 ही होगी। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। सो द आंसर शुड बी D, विच इज 1:1। इसकी बाकी ऑप्शंस भी हैं 4:9, 9:4, 5:4 एंड 1:1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1:1। Is this point clear to you? चलेंगे आगे। Now, fifth part of the question says a power transmission line feeds power at 2300 volt to a step down transformer with its primary winding having 4000 turns. What should be the number of turns in the secondary in order to get the output power at 230 volt? Read the question carefully. Everything is given to you. Whatever is given, you write down. You have been given power transmission line feeds input power. Power input. ठीक है बच्चे? तो पावर इनपुट एट 2300 वोल्ट, तो ये मेरी प्राइमरी की वोल्टेज दे रखी है, जो हमने पिछले पार्ट में VP लिखा है, जो ये हमने लिखा था VP/IP = VS/IS। तो उसमें हमें जो VP दे रखी है दैट इज द इनपुट वोल्टेज। प्राइमरी को जो वोल्टेज दे रखी है वो 2300 वोल्ट है। इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी की क्या होंगी, कम होंगी। उसके बाद इसमें हमें दे रखा है प्राइमरी वाइंडिंग यानी NP दे रखा है हमें 4000 टर्न्स, ठीक है। एंड देन वी हैव बीन गिवन व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। NS हमारा अननोन है। इन ऑर्डर टू गेट द आउटपुट पावर एट 230 वोल्ट, यानी हमें जो आउटपुट पावर यानी VS, आउटपुट पावर एट 230 वोल्ट, वर्ड वो पावर लिख रहा है बच्चे और यूनिट वोल्टेज की दे रहा है। दिस इज अ वे टू कंफ्यूज यू। आप क्वेश्चन रीड करेंगे, पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स द इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट, तो अगर आप यूनिट्स नहीं लिखेंगे और इनपुट पावर की जगह इसको 2300 को पावर लिख देंगे तो एवरीथिंग विल बी गॉन। तो आपको यूनिट्स देखनी है जब आपको जो भी कुछ गिवन है, इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट, आउटपुट पावर एट 230 वोल्ट। तो आपको सेकेंडरी में वोल्टेज चाहिए 230, प्राइमरी में आपको दे रखी है 2300। व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स? जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था NS/NP which is transformation ratio should be equal to VS/VP. NS/NP is equal to VS/VP। कोई और फॉर्मूला लगना नहीं बच्चे इसमें, ये हम ट्रांसफॉर्मर में सारा पढ़ चुके हैं। सो एवरीथिंग इज गिवन टू यू। यू हैव बीन गिवन VS, you have been given VP, you have been given NP. So the only thing that you are left with is NS. So NS should be equal to 4000 into VS/VP. तो VS हमें है दिया हुआ है 230 and this is वैल्यूज न्यूमेरिकली आपको ऐसी कंफर्टेबल दी हुई है कि आप सॉल्व कर सकते हैं। So this is practically 400 turns. ये आइडियल केस में है बेटा जब हमारे पास कोई लॉसेस नहीं है। आपको देख लीजिए, आपने 1/10 करनी है, मतलब रेशो, इन दोनों का रेशो 1/10 है, तो नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो भी 1/10 है। इन सेकेंडरी में कम होगी बिकॉज इट इज एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर एंड देयर इज नो लॉस ऑफ इनर्जी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? ठीक है बच्चे, so now we come to the assertion and reasoning questions.